ਕਾਮੜਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਨੜ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੋਭਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋਰੋ ਮੁਖ ਜੋਰੋ। ਇਹ ਸਖੀ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਕਰ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਭਾਵ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਕਰ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਕਰਨ ਦਾ ਸਾਖੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਮਨ ਲੋਰੋ। ਸਖੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੇ ਚੇਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਚੇਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣਾ ਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੋ ਮੋਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਰ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਨੇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ। ਅੰਤਕਰਨ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੋ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਰੂਪ ਸੇਜਿਆ ਸੁਹਾਵੀ ਸ਼ੋਭਨੀ ਕਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਗਨ ਚੈਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਗਨ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਸੁਖ ਚੈਨ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋਰੋ ਜੀ ਤੋਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕੰਮ ਮਾਲਕ ਪੰਜ ਦੂਤਨ ਸਿਓ ਸੰਗ ਤੋਰੋ। ਪੰਜ ਕੰਮ ਮਾਲਕ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਤੋੜਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੋਰੋ ਰੀ ਤੋਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਖੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਕਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਖੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੂਤਨ ਸਿਓ ਸੰਗ ਤੋਰੋ। ਪੰਜ ਕਾਮਾਦਿਕ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜ ਦੂਤਨ ਸਿਓ ਸੰਗ ਤੋਰੋ। ਪੰਜਾਂ ਕਾਮਾਦਿਕ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜੂਨਾ ਵੱਲ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਰ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਕਰ।
ਕੇ ਆਸਨ ਹੁਣ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਆਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਦ ਕਮਲ ਬਿਗਸੋਰੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁਖੋਂ ਰੂਪ ਦੇਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਮਾ ਮੈਤਰੀ ਮਤਤਰ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿ ਖੇਡਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਹਉ ਮੈਂ ਸੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੰਗਤ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਇਓ ਰੀ ਗਾਇਓ ਤਰੀ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਉਣੇ ਯੋ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਂਗੜਾ ਮਹਿੰਦਾ ਪੰਜਵਾ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਨਾਵਾ ਘਰ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਜਾਪ ਮਨਾ ਹਰ ਜਾਪ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨਾ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਪ ਤਾਈਂ ਤੂੰ ਜਪਨਾ ਕਰ। ਜੋ ਸੰਤ ਬੇਦ ਕਹਿਤ ਪੰਥ ਕਾ ਖਰੂ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਅਤੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਗਨ ਨਹੰਕਾਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਕਰਕੇ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਰੋਗ ਤਾਪ ਚੜੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਸੰਤ ਵੇਦ ਕਹਿਤ ਪੰਥ ਕਾ ਖਰੂ ਜੋ ਸੰਤ ਆਦਿ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਖੈ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਮਗਨ ਨਹੰਕਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਜੋ ਰਾਤੇ ਮਾਤੇ ਸੰਗ ਬਾਪਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਤੁਸ਼ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਨੇਹ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਸਨੇਹ ਕਰਕੇ ਸੰਗ ਭਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਧਰਦਾ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੈ ਉਦਾਰੰ ਵਾਪ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਦਾ ਉਦਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਜਾਏ ਮੋਹ ਭੈ ਪਰਮਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਪੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਰਮ
ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਨੇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਭਰਮ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਦਸਵਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਬਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੋ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਜੀ ਸੰਤੋ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨੋ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਜੀਓ ਬਲਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਮੋਹੀ ਪੰਜ ਦੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਮੋਹਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁਹਾਈ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਰਜ ਨਿਕਟ ਬਸਿਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤਿਅੰਤ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਕੀ ਸਰਨ ਸਾਧੂਆ ਮੈਂ ਪੰਜੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਵਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਤ ਸੰਗ ਨਿਵਾਰ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕਾਮਾਦਿਕ ਦੂਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਨ ਮੋਹੀ ਪੰਜ ਦੋਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਹਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਰਜ ਨਿਕਟ ਬਸਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਕੀ ਸਰਨ ਸਾਧੂਆ ਦੂਤ ਸੰਗ ਨਿਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਨ ਮੋਹੀ ਪੰਜ ਦੋਹੀ ਮਾਨਵ ਦੀ ਮੋਹਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਦੋਹੀ ਉਰਜ ਨਿਕਟ ਬਸਿਓ ਉਲਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜ ਦੋਹੀ ਪੰਜ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਦੁਹਾਈ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨਾ ਕਰੋ। ਨਿਕਟ ਬਸਿਓ ਗਰੀ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਕੀ ਸਰਨ ਸਾਧੂਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ
शरण थकी है। भूत संग निवार उन्होंने कामत दूतों का साथ निवृत्त कर लिया है। कर पुरमान कर देने भूत जन्म जोत भ्रमयो। संत जनों मैं करोड़ा जन्म धार के जूना दे विच भरम दा दिया हाँ। इसी प्रकार भूत जन्म जोत भ्रमयो। करोड़ा जन्म दे विच मैं भरम दा दिया आर परियो द्वार। हुण थक के आप जी दे शरण दरवाजे उपर जिया सात संगत रूप दरवाजे उत्ते पिया जी। कृपा गोविंद भाई। पृथ्वी की रखिया करने वाले परमेश्वर दी पूर्व रे पुन्ना दे पड़ेरे हुए दी मेहर हुई है। लियो नाम आधार। तदों परमेश्वर दे नाम का आसरा सत्संग दे विचों ही मिल गया है। लभ जन्म सफल नानक। सतगुरु महाराज साहब जी कथन करते ने कि कठिनाई नाल मिलने वाला मनुखा जन्म सफला हो गया है या सहज ज्ञान रूपी फल दे हो गया है। क्योंकि संत जना ने या गुरा ने उतार पार। परमेश्वर का नाम जपा के संसार समुद्र तो पार लंघा दिता है। या जमन मरण दे भै रूपी पानी नाल भरे संसार समुद्र तो पार करके मुक्ति रूप किनारे ते पहुंचा दिता है। आंगड़ा महला पंजवा। पंचवें श्लोक श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। कार 11वां। सताल दे विच ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਮਣ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। अद्वितीय परमेश्वर ओंकार जो सर्वदा प्रकाशक है। अंतगुर प्रसाद। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सहज सुभाए आपन आए। महात्मा जन आप जी ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਯਾਨੀ ਸੁਭਾਵ ਕੇ ਹੀ ਆਪ ਹੀ परमेश्वर कृपा करके आके मिलिया है। आप महात्मा जन गुरां दे उपदेश द्वारा नाम दी कमाई करके जनाउंदे नहीं। इसलिए निम्रता सहित ये वचन कीते हन। ये महात्मा जन आप जी दे किसी कीते कर्म नाल खुश होकर परमात्मा मिलिया है। कहते नहीं भाई फरमाते ने कछु न जाना कछु दिखाए। कुछ भी नहीं जानता कि परमेश्वर जी कुछ देख के आए ने या अपने आप आए ने। आप मिले सुख बाले भोले। मैनू सुधे बालक सुभाव वाले नो या सुधे सदे सुभाव करके आनंद स्वरूप परमेश्वर खुद आप आके मिलिया है कि जिन्होंने एड्रैस दिता इन्ने मूर्ख ने उत्थे पहुंच ही नहीं सकना ते क्यों ना मैं आप आके मिला। क्यों मैनू भोला जान के जिवें धन्ने नूं उहदे खूह दे उपर ही आके मिले सीगे। भाई लालो नूं सतगुरु नानक देव जी उहदे घर पंडा खड़का के मिले सन।
इसी तरह जो भगत लोचन जी ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ अंतरजामी नाम रखा के 13 दिन नौकरी करके गए। इहों मैनू भोले भाले नू घर आके मिले हन। विश्राम देकर फरमान करते ने जो मिलाए निष्काम कर्मां दे संबंध ने आद संगाई संतां श्रेष्ठ गुरां दे नाल सानू मिलाउणा कीता है। संजोग मिलाए इसे तरह जद परमेश्वर ने पूर्वले पुन्ना दे संबंध करके आद संगाई श्रेष्ठ जना दी संगत दे नाल मिलाउणा कीता। सहज सुभाए सुते सिद्ध स्वभाव की परमेश्वर जी आपन आए श्रेष्ठ प्रकाश रूप परमेश्वर आप ही आके प्राप्त हुए हन। ये अनमे करके अर्थ हो रहे ने उपरलियां पंक्तियां हेठा हेठलियां नू ऊपर लाया जा रहा है। छू न जाना अगे मैं ज्ञान दे प्रताप करके कुछ भी नहीं जानता सी। हुण जो महाराज जी छू दिखाए परमेश्वर ने कुछ दा कुछ करके आप ब्रह्म ज्ञान की दात दे के आप ही अंदरों अपना स्वरूप प्रकट करके दिखा देता राम है। मिलियो सुख बाले कोले यूं निष्कपट स्वभाव करके या बल बड़ा सुख स्वरूप परमेश्वर खुद आप आके मिलिया है। विश्राम देकर फरमान कर देने कहू न जाए इसे करके हुण मेरा मन वासना करके और किसी पासे भी नहीं जाता। बसाए क्योंकि संतां द्वारा गुरां द्वारा सत्संगत रूपी स्वरूप रूपी घर दे विच वस गया है। ओम निदान सर्व गुणां दा जो खजाना वाहिगुरु जी है। प्रगटियो ए चूला इस मनुखा शरीर विचोले विच प्रगट हो गया है। या पाशाह जी फरमान कर दे रहे चरण लुभाए आन सजाए शुभ गुणां दा खजाना जब परमेश्वर इस बुद्धि रूप चोले विच प्रगट हो गया तद ब्रह्मानंद रूप रस नूं प्राप्त कर लिया। जद साध संगत द्वारा चित परमेश्वर के चरणों में लुभाईमान होया तद गुरां ने या साध संगत ने होर साधन साथों छुड़ा दिते या द्वैत छुड़ा दी। आन सनाए सर्व समाए थावां दे अंदर थावां दे विच वसन वाले जीवां अंदर या मकानां विच भी मकानियां दे विच भी इत्यादि सारे थावां विच परमेश्वर जी व्यापक हो रहे हन। रासक रासक नानक गुण बोलै सतगुरु साहब जी कथन करते हैं कि मैं रस प्रभु प्राप्ति वाला प्रेम पैदा करने वाले सतगुरां दी संगत द्वारा तदाकार हो के नाम रसीए सतगुरां दी संगत द्वारा रसक प्रेम नाल परमेश्वर दे गुणां नूं बोलदा आनड़ा महला पंजवा आदि विच पंजवें पातशाह धन सतगुरु
श्री गुरु अर्जन देव साहब जी फरमान करते हैं, गोबिंद ठाकुर मिलन दुराई। पृथ्वी की रक्षा करने वाले स्वामी परमेश्वर नाल मिलाप करना बड़ा ही कठिन है। या साड़ी द्वैत पाउण वाली व्यक्ति के अंदर तब्दी आ रही है, शुभाबाजी करती रहती है, इसे करके स्वरूप का ओला पाती रहती है, कबरन का पड़दा ये पाई रखती है। परम तरूप अगम अगोचर, वो परमेश्वर दुनिया की मर्यादा तो परे है, साचे तो आनंद स्वरूप है, मन की गमता तो रहत है, इंद्रियां दे अभिषेक है। सर्व समाई, सारिया थावां दे विच वो वाहिगुरु समा रिहा, व्यापक हो रिहा है। विश्राम देकर फरमान करदे ने, पवन नहीं पायो पायो। बहुतियां ज्ञान दियां गल्लां आखण करके भी परमेश्वर के स्वरूप रूपी घर को नहीं पाया जाता, स्वरूप रूपी घर भी नहीं पाया जाता। इसी प्रकार पवन नहीं पायो पायो, मुख नाल ज्ञान दियां गल्लां कदर करन नाल भी परमेश्वर नहीं पाया जाता। जंगलां तीर्थां ते फिरन नाल भी परमेश्वर नहीं पाया जाता। मन की युक्त चतुराई, अनेका सियाणप वालियां गल्लां कथन करन करके भी परमेश्वर नहीं पाया जाता। या अनेका दलीलां या सियाणपां नाल भी परमेश्वर पाया नहीं जाता। जतन अनगो पावरे, भाई अनगिनत जति पुरखा वाले यतन किए, अनेक प्रकार के जल धारे आदि द्वारा वो पाप किए, अनेका नित निमित आदि कर्मां करके वो पाप किए, या अनेका मन करके यतन किए, अनेका तन करके यतन किए, अनेका बाणी करके यतन किए। मिलियो जो कृपाई, तदों ही परमेश्वर मिलिया जदों पूरे गुरु साहब जी के अंदर मेहर करन दी इच्छा आ गई। या इसी प्रकार जतन अनको पावरे, प्रभु प्राप्ति वाले यत्न करने वालियां दी संगत नाल मिल के यत्न पूर्वक अनेका यत्न कीते, परंतु मिलियो जो कृपाई। जदों उस परमेश्वर के अंदर कृपा आई तदों परमेश्वर आप ही गुरां द्वारा आके मिल गया है। उदयार कृपार कृपा नित, वो परमेश्वर पिछे भी दया दा घर सी, हुण भी कृपालु है, अति अगे नूं भी मेहर दा समुद्र होवेगा। जन नानक संग रे आई, सतगुरु साहब जी कथन करते हैं कि इस परमेश्वर की मेहर नाल ही असीं दासां नूं सास रास नाम जपण वाले महात्म जनां दी चरण धूड़ी प्राप्त हुई है। मंगड़ा पंजवा, दे विच पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज फरमाउंदे ने, माता पिता रूप संत जनों व्रत राम राम राम, हर वक्त रमे हुए सुंदर परमेश्वर के नाम को सिमरदा है, मन करके भी परमेश्वर को सिमरदा, बाणी करके भी परमेश्वर को सिमरदा, शरीर करके भी परमेश्वर को सिमरदा। आप बिना
नाहियो परमेश्वर तो बिना मैं होर किसी को भी नहीं सिमरदा। हुण उस परमेश्वर तो बिना होर कोई भी प्रतीत नहीं हुंदा। चितवा चरनार बिंद मैं दर्शन वास्ते आसन निस्फोर रात दिन श्वासा नाल परमेश्वर दे चरना कमलों नूं चितवदा याद करदा हां। याद मैं वेदां शास्त्रां या गुरां दे हुक्म अनुसार परमेश्वर दे चरण कमलों नूं चितवना कीता तद विद्या रूप रात तो ज्ञान रूपी सवेरा हो गया। राम दे कर प्रमाण करदे ने आए प्रीत कीने आपन उस परमेश्वर दे नाल प्रीति लगा के उस नूं अपना बना लेना कीता है। या उस प्रभु ने आप अपने नाल प्रीति ला के अपना सेवक बनाना कीता है। टूटत नहीं जोर हुण जोड़ी हुई प्रीति टुटदी नहीं है। या जो व्यक्ति पहला माया दी मोह करके जोड़ी हुई जुड़दी नहीं सी, हुण परमेश्वर ने ऐसी कृपा की है कि व्यक्ति ब्रह्माकार करके अपने नाल जोड़ रही है। जो थोड़ी हुई टुटदी नहीं है। मुँह लागन स्यों प्रीत बनी रहाओ तोरी न टूट शोरी न छूट ऐसी मधुर खिंचतनी। प्राण मन धन सर्ब प्राण मन धन रोकड़ी सरबंस ਅਤੇ ਸੁਖ ਆਦਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਦੇ ਸੁਖ ਮੂਰ ਮੇਰਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਪੂਰਨ ਜੋ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਤ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਦ ਚਤੁਰਾਂ ਚਲਾਕਾਂ ਤੇ ਉਤ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਖਤ ਰਿਤ ਖੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਖਤ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਰਨ ਤਰਨ ਨਾਨਕ सतगुरु महाराज साहब जी कथन करते हैं कि महात्मा जना या शांत आत्मा वाले गुरां दी ओट दे विच पै के संसार समुंदर तो तरना हुंदा है। या संतां गुरां दी ओट संसार समुंदर तो पार लगाउण वास्ते तरन जहाज रूप है। ਸਿਓ ਦੁਖ ਘੋਰ ओट करके ही भयानक जमन मन का दुख कष्ट ये नाश हो गया है। ਕਾਂਗੜਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ पंजे पातशाह शहीदां दी सरदार धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज शुभ कामना कुर्बान करते हैं। ਜਾਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੇ ਅਸਨੇਵ हे परमेश्वर साडे दासां दा तेरे नाल अत्यंत प्रेम है। ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ परमेश्वर तू ही साडा इस लोक दा सज्जन है। तू ही साडा परलोक दा मित्र है। ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੇ तेरे सत संगत रूपी घर विच धर्म अर्थ काम मोख आदिक सारा कुछ ही है। जो मंग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देव
नानक दास मुख ते जो बोले इहा मुह सच होवे। विश्राम देकर फरमान कर देने हे परमेश्वर मैं तेरे पासों दुनिया दा सत्कार मंगदा हाँ जी। मैनू जिथे भी जावां उथे वेलकम होवे ते अगे दान मांगा। मेरे डोलियां दे विच बल होना चाहिए भी थम्मे नूं मुक्का मारा ते थम्मा हिल जाए। मेरी जबान दे विच इन्ना जोर भर दे कि किसी ऐरे गैरे नूं मैं धमका मारा ਉਹਦੇ पैर कंबन लग जान। कोई शराबी कबाबी लली छली मेरे वाल निगाह भर के ना वेख सके, एहो जिहा मेरे मत्थे दा तेज प्रताप कर दे तो मेरिया लत्तां दे विच इन्ना जोर भर दे कि जिथे भी मैं खड़ा धरती तां हिल जाए पर मेरिया लत्तां ना हिलन। ये आप मेरे ते कृपा करो क्योंकि मैं तो आप दा एक नमाना जिहा सिख हाँ। हे गुरु गोबिंद सिंह साहब तू तो चिड़िया नूं अमृत छका के ते बाजा ना लड़ा दिता। चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गोबिंद सिंह नाम कहा। क्यों मेरे पट्टा च मेरे डौलियां च जोर पा मेरी जबान दे विच मेरे बोल दे विच गंभीरता एहो जिहा बल पर कि जिथे भी मैं बोला सारे चुप करा दिया। मेरे मत्थे का इन्ना तेज प्रताप होवे कि कोई बंदा मेरे वाल निगाह भर के ना वेख सके। तेरे च समर्था है। तू तो छोटी जी कीड़ी दे विच आपदी पाव रख दे, निकी कीरी मह कल रख है, भस्म करे लश्कर कोट लख है। छोटी जी कीड़ी च तू आपकी शक्ति रख दे ते लखा ही गुलाम लश्कर साड़ के स्वाह कर सकती है। तेरे घर सब कुछ है। साचे साहिबा क्या नहीं कर तीर करता तीर सब कुछ है। इस देह सो पावे। ये इतना पावरफुल शब्द है जिन्हों एटम बंब कहते हैं ना, एटम बंब परमाणु शक्ति। एक पूरी की पूरी रेलगड्डी कोले की भरी होवे ते यूरेनियम 1 किलो ही बहुत है। जिन्नी 1 किलो यूरेनियम तो बिजली बनती है पूरी की पूरी कोले वाली रेलगड्डी भी उन्ना नहीं बना सकती। इन्ना ही शब्द यूरेनियम वाली पावर वाला परमाणु शक्ति वाला एक उदाहरण के तौर पर मतलब जिसनों भी कुछ चाहिए है किसी का आपके घर किते बाहर सरकार ने माइया बीबियां भैणां साडियां बेचारियां सौहरे परिवार वालों तंग परेशान कीतियां जांदियां। भाइयों नूं कई बार घर वालियां वालों परेशानी हुंदी है या बंदा धक्के थोड़े खांदा डिगदा ढहिंदा बेरोजगार कुछ भी प्राप्त नहीं हुंदा। ये शब्द है पवित्र पावन जाप करो, मूल मंत्र गुर मंत्र नाम नाल लाओ ते नाल शब्द का जाप करन तो सच्चे पातशाह कृपा करदे हन, सब कुछ बख्शदे हन। क्योंकि दात दात रखी हाथ अपने जिस भावै तिस देई नानक नाम रते सुख पाया दर लै जापै सी। सो ये जिहड़ी दात है परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हुई है, जिन्हों मर्जी दे सकता है। पंजोखरा साहिब की साखी तुसीं जानते हो, उसका की इतिहास है कि कलाल नामे पंडित ने सतगुरु हरकृष्ण साहब की छोटी उम्र वेख के महाराज ने तर्क की सी कि नाम कृष्ण भगवान के नाम भी वड्डा रखवाले है श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी। भावें उन्होंने विचारी गीता के अर्थ भी ना कर सकते हो, हमारे जो पढ़ता और पढ़ता वे जा जिन्ना मर्जी लाया वो अर्थ करा दूंगा। उन्हें
तवे वर्गा काला बंदा, चिवड़ा का मुंडा, चिट्टा पढ़ गूठा छाप, जिन्हें कड़ी स्कूल तक ही जाना, स्कूल जाते भी नहीं सन वेखे, लोगों के घरों के पानी के घड़े भर के बेचारा रोटी खांदा हुंदा, मूँह तो गूंगा ते कन्ना तो बोला बंदा, छज्जू चीवर फड़ के लिया उन्होंने लालच दिता भी मैं तेनों कुछ दूंगा खाण नूं। वो भज्जा भज्जा तुरे आए, सतगुरु जी ने आपने इशनान किए जल विचों उहदा इशनान कराया अते उन्होंने नवे वस्त्र पहनाए। सिक्खां नूं कहा कि उन्होंने नवा धवा के कपड़े पहना के साडे कोल लिआओ। श्री गुरु हरकृष्ण साहब के सन्मुख बैठ गया। मारे कहते रब नूं मत्था टेक, उहदा मत्था आपदे चरनां ते लवाया, उहदे सिर दे उपर फुल्लां दी छड़ी रखी। ज्यों ही गुरु हरकृष्ण साहब ने फुल्लां दी छड़ी रखी, आखिया भी पंडित वाल मूँह कर, अरे इन्हूं पुछ भी की चाहुंदा है, तुसीं सच नहीं मनना। उन्हें संस्कृत का श्लोक पढ़िया, कसमन शास्त्र प्रवर्तते। पंडित हिल गया, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਲ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿੰਦੋਂ ਪੜਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਕਰ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਾਤਾ, ਆਪੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਆਪੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ये पंजोखरा साहब की साखी जे अडिल सुने गुंग जो याहे सो रसना पावे। किसी की जुबान ना चलती होवे बाणी च, कथा दे विच, कीर्तन दे विच तुसीं ये शब्द जाप जपो, पटाक पटाक तोदे वांग बोलोगे। गुरु हरकृष्ण साहब का ध्यान धर के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। इन्नी बरकत है गुरबाणी दे। वेखण अखर ही ने, छोटे छोटे शब्द ने, पर गल तो कमाई दी है, अभ्यास की है। इस वास्ते साध संगत जी बोध का जिहड़ा बीज हुंदा, बीज हुंदा तां छोटा जिहा ही है, पर जिहनूं धरती विच बो दिओ फिर पता लगदा कि इहदे विच की कुछ सीगा, कितना वड्डा बोध का दरख्त पैदा हो जाता। तो इस तरीके नाल गुरबाणी गावे है भाई और सफल सदा सुखदाई। जो बाणी है जियो जाने ते सत्य रवै हर नामा। कला कला अखर, एक एक शब्द इन्ना पावरफुल है कि बंदे को बरकत सामनी औखी हो जाती। इन्ना महाराज दाता बख्शिश करता है। इसलिए महाराज मैं दुनिया के विच सत्कार चाहुंदा, घर के अंदर भी मैनू सत्कार मिले, मैनू रोटी मिले, ते बाहर जिथे भी जावा उथे लोग हार लैके सरोपे लैके खड़े होण, ये हाथ जोड़ के मेरी उड़ीक करते होण, ते मैनू जियो आया नूं आखण। इन्ना सत्कार मैं तेरे घरों मंगदा। ख्याल करना, जिन्हों भी सत्कार की जरूरत है। जिन्ना मर्जी बंदा कहे भी मैं ब्रह्म ज्ञानी हाँ, कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं होंदा, बंदा तो बंदा ही है, कोई गुरु या रब थोड़ो। साडे गुरुआं नूं ये चीज़ां नहीं सी चाहीदियां। हर सोगती रह यारो ना ही मान अपमाना, या साहिबजादे ने कोई परवाह नहीं की। अस तो हम बंदे हाँ, थोड़ जिन्ना मर्जी बोली जाओ, तेनों नहीं चाहिए सत्कार दसो, एवं थोड़ नहीं बोलना चाहिए। सच्ची गल करो, कहो महाराज नूं मैनूं चाहिए, झूठ का तो बोलना। आपके गुरु को मंगण का कहना लामा दसो, कोई लामा है कोई तुहानूं बुरा आखूगा? हाँ चाहिए है। तो महाराज कहते भाई जो कुछ तुहानूं चाहिए वो तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों के विच थोड़ा बहुता पेटा रख के मत्था टेक के अरदास करो। जे तुहानूं पैसे चाहिए ने तो 10 रुपये का घट्टो घट्ट पाओ ना गोल, कुछ पाओगे तो ही मिलूगा। ये प्रेम की भेटा है। ये नहीं भी महाराज 10.5 रुपये का भुखा है, एक डोना थले उहदा लैके आओ प्रसाद, कुछ तुहानूं खाण नूं चाहिए। हुण 5 कुंटल कणक सानूं 1 साल की चाहिए है, घट्टो घट्ट प्रसाद का डोना तो लियाओ।
ये नहीं भी महाराज प्रसाद का भुखा बैठा साढ़े प्रसाद नाल ही उन्हें रजना, नहीं सानू नहीं चाहिए खाण नूं, कोई दाल फुलका चाहिए, माड़ा मोटा आटा दाना लैके आओ, कोई दुध चाहिए, कोई माड़ा मोटा भेटा करो। जे सत्कार चाहिए तो घट्टो घट हाथ जोड़ के मन नूं चौरतां चलाओ, रमाले साहब सवारो धोवो, गुरु साहब के अस्थान की सेवा करो, गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार तो करो। जिन्हीं नानक सतगुरु पूजिया तिन हर पूज करावा। जिन्हां ने जिन्नी गुरु ग्रंथ साहब की पूजा की सत्कार किया वो तो 100,000 गुना वध मारे ने दुनिया को उहदा सत्कार कराया। तुसीं एक बार मत्था टेकोगे लोग तुहाडे पैरां दे 100 बार मत्था टेकणगे। तुहाडे जिहड़े बाल बच्चे तुहाडी आग्या तो उल्ट ने, बच्चों को उहदा सत्कार चाहुंदे हो ना, तुसीं महाराज दे गोडियां हत्थ लाओ आके गुरु साहब नूं नक रगड़ो, निआणे तुहाडे अगे नक रगड़ने। जे चाहिए इस तरह घर दे विच सत्कार कि बाल बच्चे साडी आग्या च रहन, महाराज की आग्या मनो, गुरु साहब तुहाडे परिवार नूं तुहाडी आग्या च करूगा। मतलब ये प्रेम का इजहार है। कहते चरण सरन गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे हुए लेत है, भावनी भगत पाए कौड़ी अगर भाग रखे, ताहि गुर सर्व निधान दान देत है। महाराज के अगे कोई कौड़ी भी रख के बेटा रखे तो प्रभ कै सिमरन रित सिद्ध नौ नित, रिधियां सिद्धियां दी नौ निधियां दी महाराज बख्शिश करदा। जे तुहानू ज्ञान ध्यान की जरूरत है तो माड़ा मोटा गुरु साहब के चरणों में प्रेम जगाओ, सेवा करो, जोड़े कर दी बर्तना की। नानक गुर सेवा कि ना लभे थे दसो गुरुद्वारे की सेवा तो की नहीं लगता। कहते ने सेवा करके मान पाईदा, महाराज की सेवा करके ही मान आदर सत्कार पाईदा। इस वास्ते सतगुर की सेवा सफल है। देखो करे चित लाए मन चिंदिया वर पावना, मैं बिचों जाए नहीं यकीन था अज शुरू करके वेख लो। गुरु साहब सच्चे पातशाह जी की बाणी का पाठ, गुरु घर की सेवा, चार पदार्थ जेको मंगे, सात जना की सेवा लागे, जेको अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सतगावे, जेको अपनी शोभा लोरे, सात संगे होमे शूरे, जेको जन्म मरण के डरे, सात जना की सरनी परे, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक तन के बल बल जासा। इंज ये महाराज जी की जिहड़ी बाणी है, शब्द है, बख्शिशां भरे हैं। मान मंगो महाराज मैं सत्कार मंगदा हाँ, ते तान मंगो शरीर का बल मंगदा है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने जब पैंदे खान गुरु साहब ने दा सिखाया सीगा ते महाराज का दा महाराज की वरतन लग गया। याद रखना उस्ताद शागिर्द दी नालों गुण वध रखता है। उन्हें की दा वरतिया, करतारपुर फौजा चढ़ा के लिया कि मैं गुरु हरगोबिंद साहब नूं तां मैं आप कल्ला ही सामभ लूँगा, बाकी फौजा तुसीं सामभ लिओ। उन्हें बोली मारी भी हुण तूं सामने नहीं जाता। तो गुरु हरगोबिंद साहब वाल आया, उन्हें सोचा कि मैं गुरु हरगोबिंद साहब नूं घोड़े समेत जफा पा के पुट्ठा सुट दिया। जब हेठों नहीं लगा जफा पाउण ते महाराज ने वट के उसके मत्थे विच ढाल मारी। हथियार हो जिहड़ा लोड़ वक्त काम आवे, कोई बंदूक नहीं चलाई, कोई पिस्टल नहीं चलाया, कोई कृपान नहीं कटी, कोई छुरा नहीं मारिया। ढाल फड़ी हुई सी, अत्यंत नेड़े हो गया, अत्यंत नेड़े, ना तो बर्शा ना कोई कृपान ना कोई पिस्टल काम आवे, बिल्कुल नेड़े जब होया जफा लगा पाउण ते महाराज ने उहदा मत्था वेखिया। सतगुरु की ढाल का एक फुल जिहड़ा सी 5 सेर का सी, 5 सेर का अगों तिखा सी, तिखा मत्थे भज्या, भांटनी खा के मुंहड़े मुँह धरती ने डिग गया। सतगुरु घोड़े तो उतरे, कहते पुत दस हुण दस। बेहोश हो गया, लत्तां मारी जाए। महाराज ने उहदे चेहरे ते ढाल की। महाराज कहते तेरा अंतम समय हो पुत, तेनों दुध घिओ मलाइयां खवा के पाल के इन्ना जोर करा के तेनों बल वाला किया। इन्हां दिनां नूं
ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ मैं इस तरह किया, तेनों जम्मिया पालिया, दस आपदे प्यो ते वार करी रहो, तेनों पुत्तां नूं वध प्यार किया। सिख बड़े मैनूं समझाउंदे सी कि मुसलमान मुसलमान ही हुंदे ने, इन्हां तुरकां नूं लागे ना लाओ महाराज, पर मैं किसी दी नहीं मनी ते कोई पक्षपात नहीं किया। सर्व सांझी वालता का उपदेश देण लई मैं तेनों आप मूँह दे विच बुरकियां पा पालिया। हुण दस पुੱਤ तेरा अंदम समा पढ़ ला कलमा, तू मुसलमान है मुसलमान, तेरी कल्याण हो जाएगी। महाराज ने ढाल की शान की, फिर भी तरस आया। जदों होश दे विच आया कह लगा महाराज, उन्होंने फिर ज्ञान हो गया। उन्हें महसूस किया कि गुरु हरगोबिंद साहब प्रभु का रब का रूप ने। अज तक उन्हें रब नहीं सी समझिया, आपके बराबर का बल बड़ा समझता सी। रब का रूप जाके कहने लगा, हे वाहिगुरु, हे परमेश्वर, हे खुदा अल्लाह ताला, मेरे लिए तू ही खुदा है, तू ही भगवान है, तू ही गुरु है, तू ही माँ प्यो है। तेनों जे मेरे बारे पता है कि मेरी कल्याण रब का नाम लैन करके हो सकती है, ते तू खुद भगवान है, रब है, कृपा कर मेरी तलवार ही तेरे वास्ते कलमा, मैं तड़फदा रहूँगा, फटड़ हो गया, उठ मैं सकता नहीं, मंजे से पै के जान कढ़न की बजाय तू आपकी तलवार मैनू बख्श दे एक बार करके, ये महाराज मेरी मुक्ति कर दे, क्योंकि मैं समझदा जिहड़ा तेरी तलवार नाल मरदा वो मुड़ के जमन मरन के गेड़े में नहीं पैंदा। पैंदे खां दी समाध है, करतारपुर तुसीं जाओ, एक तो करतारपुर साहब गुरु नानक साहब जी वाला है, डेरे बाबे नानक तो पाकिस्तान वाली साइड नारूवाल जिले का पिंड जो गुरु साहब ने वसाया नगर। तो ये जो करतारपुर जलंधर टपदियां सारी सज्जे हाथ जोड़ा भोगपुर नूं सड़क जाती है किशनगढ़ नूं, छोटी जी सड़क पर सज्जे हाथ पैंदे खां दी समाध अजे भी मौजूद है, जिथे गुरु हरगोबिंद साहब ने पैंदे खां चढ़काया सी। महाराज दे विच इन्ना बल सी, माता गंगा नूं बाबे बुढ़े ने मार दिता भी माता ये मेरी मां तेरे घर वाहिगुरु इहो जिहा बल वाला साहिबजादा भेजूगा भी जिथे भी वो पैर रखा करो धरती हिला दिया करो, मुक्का मार के ते तुरकां दे इतना सिर भुन्या करो जितना मैं गंढा बनिया। पर उहदी आवाज दे विच इन्नी गरज होएगी कि बदल भी घबरा जाओ, इन्नी बदल वर्गी गरजनी, उहदी तलवार इन्नी लिशकूगी कि तुरकां दी अखां नूं अन्निया कर दिया करोगी। इहो जिहा बल बाबे बुढ़े ने वर बख्शदा सीगा। क्यों गुरु घर दे विच लोड़ भी सीगी, चार महान जंगां महाराज ने कीतियां ते चारे ही सूरज छपण तो पहला जित्तियां ने। इहो जिहा महाराज मैनूं तान बख्श, मैनूं बल बख्श, जिहो जिहा तूं पैंदे खां नूं दित्ता सी, पर उहदा किरत करने मुक हरामी हो गया। धन बाबा विधि चंद, भाई जेठा जी, भाई पैड़ा जी आदका ने गुरु घर दे विच सेवावां निभाईयां। इहो जिहा जोर ना होवे जिहड़ा विषया वकारां दे विच शरीर नूं बर्बाद कर बैठी, जोबन जांदे नाल ना जिस प्रीत ना जाए, प्रीता किती जोबन प्रीत पैना, सुख गए कुम नाए। बाबे जरनैल सिंह खालसा ढंडरां वाले वर्गा सानूं बल बख्श। वो बोलते मंजी साहब सीगे। अजकल वेखो कितना यूट्यूब का फोना का जमाना, अजकल तो ये आम ही गल्लां ने, तुसीं आपदा बोल जिथे मर्जी पहुँचा दो। और वो दिन सीगे मंजी साहब बोलते सी और वो धमक दिल्ली पैंदी सी, एक एक गल उत्थे पहुँच जाती सी। तो इन्हां महापुरखां दे बोल पानी दे विच बल सीगा। वही साडे नियाणे मुंडे ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ आखे नहीं लगते, चार बच्चे सामने औखे होए पे, सिर कटाई जाते हैं, शराबा कबाबा, कोई चिट्टा कोई काला, कोई कुछ नशियां दे आदी हुए ने। महापुरख असीं अपनी अखां नाल वेखदे रहे हैं। साडे पिंड अज भी कोई मुंडा मोना नहीं जे, तुसीं हैरान होवोगे। मेरा पिंड बरपाल है, अमृतसर की जड़ दे विच गोलवड़ मैदान बाबे दीप सोने जिथे युद्ध शुरू किया। अज भी तुहानूं मैं इत्थे दर्शन करावां। कदम कदम के शहीदों के स्थान ने, सारे मुंडे केसाधारी ने। खबरे कार सेवा वाले महापुरखों की कृपा, सेवा से आप जाते रहे। ऐतवार किसी बाबे ने आ जाना, मंगलवार किसी ने, बुधवार किसी ने। महापुरखों के कोल ऐतवार दुध लैके जाना, गराई करके घरों घर तुरे फिरना। सो इन्होंने महापुरखों की कृपा
ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪਾਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਧੂੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਤੇਰਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੱਕੀਏ ਨਾ ਹੰਬੀਏ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਂਕੜਾ ਬਖਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਹੰਬ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਸੁਤ ਦੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਸ਼ਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੱਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਬਣੇਗਾ ਲక్ష్ਮੀ। ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਸ਼ ਮਨੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਝੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਧਵਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੈਵੇ ਮੰਗੀ। ਮਤਲਬ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ, ਪਤ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਚ ਪਰਭਾਗਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਆਊਗਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ। ਘਰ 'ਚ ਦਾਣੇ ਪੱਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਟਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦਾਣੇ ਪੱਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸੁੱਟੋ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਜੋ ਪਤ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਚ ਪ੍ਰਪੱਖ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੁੱਤ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿਕ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਨ ਮੰਗੋ ਤਾਨ ਮੰਗੋ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਨਣ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਨ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਬਲ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਲ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਸੁਤ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੱਬਰਤਾਰੇ ਵਿਖਾਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਦੱਸੋ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 1000 ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੜਾ ਕੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚ ਮੰਨੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਮੰਨੋ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅਸਲ ਧਨ ਹੈ।
ते भगती ते ब्रह्म ज्ञान रूपी सपुत्र इहदी दात देना करो। ते हे महाराज जो प्रेमा भक्ति रूप स्त्री बख्शो जी। भुगत जुगत भुगत पूराना सानू मुक्ति की प्राप्ति वाली जुगती बख्शो। भुगती की जुगती विच पदार्थां करके ਅਸੀਂ परिपूर्ण रहिए। परमानंद परम निधान हे बड़े आनंद ब्रह्मानंद स्वरूप ते बड़े नाम रूप खजाने वाले परमेश्वर तू मोक्ष की प्राप्ति वाली जुगती ते भुगती की जुगती विच पदार्थां करके लवालव भरिया होया। सानू मुक्ति भी दे जुगती भी दे मुक्त होने की पदार्थां नूं भोगण वास्ते भुगत भी बख्श। है भाई भगत निहाल नानक आज सानू आपदा भै दे हमेशा सी तेरे तो डरते रहिए। प्रेमा भगती करन दी दात बख्शिश कर। इसे नाल ही असीं प्रसन्न होइए दुखां तो रहत हो जाइए। सदा कुर्बान इस करके असीं तेरे उपरों हमेशा हमेशा कुर्बान बलिहार जांदे आ। सतगुरु महाराज कथन करदे तेरी डर दे संयुक्त होके प्रेमा भगती करन नाल प्रसन्न रहीदा दुखां तो रहत हो जाईदा। इसलिए असीं तेरे तो बलिहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस के देवते किए करत न लागी बार। तेरे तो बलिहार कुर्बान जांदे आ जी। भुलां चूकां ना करनियां अगे तो मत बख्शिश करनी जी। भुगत जुगत भुगत पुराना परमानंद परम निधान भाई भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान। वाहिगुरू जी का खालसा